and revise your stuff. ठीक है? So let's start with April then. So Ministry of Commerce and Industry, we started yesterday with this. It has launched a foreign trade policy जो 1st April से it would have come into place. So हमने कल भी पढ़ा था when we started and then we stopped कि 2 trillion target 2 trillion dollars, beg your pardon, $2 trillion का टारगेट है for exports of goods and services by 2030. ठीक है? 2030 तक हमारा ये एक्सपोर्ट जो पॉलिसी हमने बनाई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, what we want to achieve is we want to achieve export of goods and services. Goods I explained, what are services I also explained, of about $2 trillion. ठीक है? तो इसमें 4 new towns ऐड किए हैं. 4 new towns have been added and designated as towns of export excellence. Which are these towns? फरीदाबाद, ये याद रखें, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी. So these towns are Faridabad, then we have Mirzapur. ये नोट कर लें आप टाउन्स, मुरादाबाद, and वाराणसी. ठीक है? Then we have the exporter firms, the firms which will export these products, recognized with status 2 star, 4 star, 5 star. ठीक है? उनकी रेटिंग की जाएगी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, है ना? तो ये एक इनिशिएटिव रहेगा. Then it will partner with state governments. Please keep your phones on mute. Please keep your phones on mute. So partnerships with state governments. ठीक है? As per this scheme, these exporter firms, they will partner with state governments and taking districts as export hubs. So ये एक initiative क्या है? They will make districts, ठीक है? Districts as the center of export excellence. Districts will be kind of the center of export excellence. Fair enough? फिर आपके पास ये है कि streamline SCOMET policy. What is this SCOMET policy? Special chemicals, organisms, materials, equipments and technologies which are also called as dual use items, means which have multiple uses. Particularly these are in, for example, we have nuclear fuel. It can be used, nuclear technology can be used to create weapons, as well as it is also used in treating carcinomas, that is cancers. Okay. So facilitation will be provided under the EPCG scheme, export promotion goods of capital goods. Capital goods, what are capital goods? Capital goods are those which help in production of other goods. For example, machinery. Machinery is a capital good. कोई भी एक फैक्ट्री में कुछ मशीन लगी है जिससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, so that is a capital good. Okay. So EPCG scheme allows the import of capital goods at zero custom duties because it will help in production of raw materials. It will convert raw materials into finished products that we will export later. ठीक है? For export production. ठीक है? तो ये एक initiative है. Then we have Advance Authorization Scheme. It provides duty-free import of raw materials for manufacturing export items. ठीक है? तो ये apparel और clothing sector में use किया. फिर एक एमस्टी स्कीम लॉन्च हुई थी. इसमें क्या हुआ? वन टाइम एमस्टी दी गई. Exporters who have been unable to meet their obligations and advance authorizations
कैन बी रेगुलराइज्ड ऑन पेमेंट ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटीज। जिन्होंने अपने पुराने ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं उनको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यू क्लियर योर ड्यूज एंड गेट योर ऑथराइजेशंस राइट। ठीक है, तो इंटरेस्ट 100% ऑफ द एग्जेम्प्टेड ड्यूटीज इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। Then we have FAME 2 scheme. What is this FAME 2 scheme? Under the Ministry of Heavy Industries, ठीक है, टू सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो FAME स्कीम आपको पता होना चाहिए, ये ईवीज के लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। ठीक है, ठीक है, इट हैज अचीव्ड ओनली दिस मच, इट इज द फैक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो अभी ईवी चार्जिंग स्टेशन हमारे कुछ कुछ कंट्रीज में है। तो यहाँ पे जो याद रखनी है चीज आपको वो यही है, दैट द FAME scheme deals with EVs, electric vehicles, and under the Ministry of Heavy Industries. Then next we have CERTAN, ठीक है, ये है हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT, ठीक है, अंडर MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2004 में अंडर IT एक्ट। इट इज अ नोडल एजेंसी, किस चीज के लिए? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए। ठीक है, प्रपोजल आया था कि इसको सेकंड शेड्यूल ऑफ RTI में डाल दिया जाए विद एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CBI एंड BSF। तो जो हमारा RTI एक्ट है ना, उसमें देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस आर केप्ट एग्जेम्प्टेड बिकॉज, फॉर एग्जांपल IB, we have RNAW, these organizations are exempted. Okay, so that's about it. Okay, so what is unified tariff? ठीक है, it is a way to calculate the price of transporting natural gas across different pipelines in India. ठीक है, ये एक कैलकुलेशन का एक तरीका है। ये रेगुलेटर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्वायर बोर्ड। तो इट हैज नोटिफाइड द लेवीज लेवलाइज्ड यूनिफाइड टैरिफ ऑफ जितना, ये फैक्टर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यूनिट याद रख लिए, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स MMBTU। ठीक है, तो इनके 3 तरह के टैरिफ हैं, 3 टैरिफ जोन्स बनाए हैं। पहला क्या है? 300 किलोमीटर तक फ्रॉम द गैस सोर्स, 300 से 1200 और बियॉन्ड दैट। तो इनके लिए डिफरेंट टैरिफ विल बी केप्ट टू टू मे बी क्रिएट सम यूनिफॉर्मिटी, ताकि जो डिस्कॉम्स हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज ना करें। ये डिस्टेंसेस आपको पता चल गई, दे हैव टू notify their prices as per that. Okay, so this one is also going to help us in one nation one grid one tariff model, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब किसी एक्ट से बनी होगी। कौन सा एक्ट? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, फर्स्ट एवर डे ऑफ जीरो वेस्ट कब सेलिब्रेट हुआ? March 30 को। ठीक है, एस्टैब्लिश किसने किया? UN हैबिटेट और UNEP। तो ये याद रखो किस किस बॉडी ने बनाया है। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट बाय UN हैबिटेट एंड UNEP। फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA। ठीक है, इट लॉन्च स्वच्छोत्सव 2023 टू गैल्वनाइज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन की पार्टिसिपेशन को एनहांस करना है, ताकि जो गार्बेज फ्री सिटीज का हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। तो हमारा टारगेट क्या है? 1000 सिटीज 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज बनानी है 2024 तक। तो ये हमारे किस प्रोजेक्ट के अंदर है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन के 2 इसके सब पार्ट्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और अर्बन। ठीक है, तो 2024 तक 1000 सिटीज बनानी है आपने 3 स्टार गार्बेज फ्री। नेक्स्ट वी हैव, यहां तक क्लियर आपको? एनी डाउट? क्लियर सर? हाँ जी बोलिए, एनी डाउट्स? Somebody was saying something? सर इन दिस पर्टिकुलर वी हैव टू रिमेम्बर द फैक्ट्स ओनली सर, जैसे कि वो जीरो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वेस्ट, मतलब इसमें MCQ फ्रेम हो सकते हैं सर क्या? हाँ हाँ, MCQ फ्रेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डेट याद, जैसे
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, मतलब जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना। तो जी वो सर। इसकी डेट, ये इंपॉर्टेंट डे सबके नहीं याद रखने, ऐसे जी जी। इंपॉर्टेंट, इसका डेट से ज्यादा इसमें ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यूएन हैबिटेट और यूएनईपी। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ अब हाँ। स्वच्छोत्सव किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, हाउसिंग जी। लाइक 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 दैट, लाइक दैट। थैंक यू सर। ओके ओके, मूविंग ऑन। व्हाट इज अ कॉम्पैक्ट कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर? तो आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, they have designed a novel ultra micro supercapacitor, a tiny device capable of storing enormous amounts of electric charge. तो capacitor आपको पता है, it stores charge only ना, electricity, electric charge. It combines the best of both batteries and capacitors. Use metal oxide based electrodes and these all things. just इतना remember करो किसने बनाया, IISc बैंगलोर ने क्या बनाया, एक सुपर कैपेसिटर बनाया, which has the twin benefits of both batteries and capacitors. बहुत ज्यादा amount of electric charge it can store. साउंड ऑफ प्लांट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि इजराइल है ना, ये सिर्फ गाजा पे बम नहीं डालता है, इट हैज अ वेरी हाईली एफिशिएंट एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। इन्होंने बहुत हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज है इनकी। तो जो टेल अवीव यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ टेल अवीव, इट हैज शोन दैट टोमेटो एंड टोबैको, ठीक है, नॉट ओनली मेक साउंड्स बट डू सो लाउडली एनफ फॉर अदर क्रीचर्स टू हेयर। तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि टोमेटोज एंड टोबैको, these plants they make sounds and loud enough. ये causes क्या है इन sounds के? Cavitation. Cavitation suggests that cavitation may be at least partially responsible. जो cavities होती हैं, it's the process also. Cavitation एक process क्या है? Cavitation is a process through which air bubbles expand and burst inside the plant's water conducting tissue. Xylem एक होता है ना, xylem and phloem. Xylem is the water conducting tissue of the plants. So when air bubbles expand, they kind of burst and they produce. So cavitation क्या process है? तो ये भी आपको वहां पता होना चाहिए. Now this is from space science. NASA का Dragonfly mission to explore Titan. Titan क्या है? Titan is the second largest moon of Saturn. तो ये इसमें बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ड्रैगन मिशन किसका है? नासा का। किसको एक्सप्लोर करने के लिए? टाइटन। टाइटन क्या है? सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, ठीक है, आफ्टर जुपिटर्स गैनीमेड। तो अगर सबसे बड़ा मून है किसी भी प्लैनेट का सोलर सिस्टम में, नंबर वन इज गैनीमेड, और हाउ एवर यू प्रोनाउंस इट, जुपिटर का ये। एंड एट नंबर टू वी हैव टाइटन, दिस इज ऑफ सैटर्न। ओके। तो इट इज लार्जर देन मर्क्यूरी एंड हैज लेक्स, रिवर्स, ये सारी कहानी नहीं चाहिए आपको। ऑक्सीजन नहीं है, ये याद रख लो, ऑक्सीजन नहीं है, इतना याद रखो, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई मिशन is a part of NASA's New Frontier mission. This is very important. The New Frontiers mission of the NASA, which also includes New Horizons mission to Pluto, Kuiper's belt, ठीक है, Juno to Jupiter, और Osiris Rex to asteroid Bennu. ये सारे इसके मिशन है न्यू फ्रंटियर मिशन। न्यू फ्रंटियर मिशन है जो जो आउटसाइड जो ना, फर्दर जो सोलर सिस्टम है एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये सारे मिशन आपको याद होने चाहिए। न्यू होराइजन्स कहाँ है? न्यू होराइजन्स नासा का मिशन है फॉर प्लूटो एंड कुइपर्स बेल्ट, ठीक है। जूनो फॉर जुपिटर है। ऑसिरिस रेस्क, दिस वाज द एस्ट्रॉइड बेनू, ये एक एस्ट्रॉइड है। ये आपका ये जो टॉपिक हो गया बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें बहुत ज्यादा आपको डेटा है, इसको सारा याद ही कर लो आप, ठीक है। देन यू हैव, ये हमने 2-3 दिन पहले भी पढ़ा था कि जापान का जो न्यू प्लान है फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है, इसमें $100 million इसने दिया है फॉर द जापान आशियान इंटीग्रेशन फंड टू प्रमोट
बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन, ये प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स में, प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स में भी था, ठीक है। फिर जापान विल इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ओडीएस, ऑफिशियल डेवलपमेंटल असिस्टेंस। तो जापान काफी ज्यादा ओडीए इंडिया को देता है, डीएमआईसी हो गया या और भी हमारा ट्रेन सिस्टम्स है वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट आपका नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर 2022-2027, तो इसकी बॉडी कौन सी है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मस्ट क्रिएट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इन लाइन विद द पॉलिसी, ठीक है। एक्ट कौन सा हमारा? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ठीक है। ये बाकी इसके शॉर्ट शॉर्ट प्लान्स है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको वी कैन जस्ट स्किप फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक। नागराजा थीरा, इट इज अ डांस वर्शिप, ठीक है, सेलिब्रेटेड एट द श्री मोचिलोटू टेम्पल एट खुथिरावटम इन कोझिकोड। क्या था ये आपका? नागराजा थीरा। दिस इज अ डांस वर्शिप, इट्स अ डांस वर्शिप सेलिब्रेटेड एट श्री मुच्चिलोटू, श्री मुच्चिलोटू खुथिरावटम कोझिकोड, ठीक है। 2024 is going to be celebrated as the year of वाइकॉम सत्याग्रह। वाइकॉम सत्याग्रह कहाँ हुआ था ये आप मुझे बताएंगे। दिस इज योर होमवर्क, नोट कर लीजिए। कल मुझे याद नहीं भी रहा तो कल आप बताएंगे, कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। वाइकॉम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, क्या जेनेसिस था, हु वाज द मेन लीडर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, स्कीम फॉर रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली ये सारे काम होम मिनिस्ट्री करती है, 2018 में हुई थी, 24 तक चलेगी। ये सारी डिटेल्स नहीं चाहिए आपको, बस इतना याद रखो कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, कितने आए थे, ये कोई पूछने नहीं वाला है। रेयर डिजीज मेडिसिन, गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया ऑल इम्पोर्ट की, ऑल इम्पोर्टेड मेडिसिन पे जो रेयर डिजीज के लिए उन पे ड्यूटीज वगैरह एग्जाम्प्ट कर दिया, ठीक है। और फुली एग्जाम्प्ट कर दिया कौन सी? पेम्ब्रोलिजुमैब, विच इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। तो इसमें ये याद रखना है कि ये जो ड्रग है ये कौन से डिजीज को ट्रीट करने के काम आता है, ठीक है। द फर्स्ट केस ऑफ प्लांट फंगस कॉल्ड कॉन्ड्रोस्टीरियम परपुरियम, ठीक है, इन्फेक्टिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये वाली फंगस का पहला केस ह्यूमंस को इन्फेस्ट करने वाला केस आपको कोलकाता में मिला है। कॉन्डोस्टीरियम परपुरियम इन्फेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, कोलकाता से। द फंगस इज नोन टू कॉज सिल्वर लीफ डिजीज इन प्लांट्स, स्पेशली रोज में। तो ये कॉन्डोस्टीरियम परपुरियम, सिल्वर लीफ डिजीज इन प्लांट्स, पर्टिकुलरली इन रोज, ठीक है। द हैट, नो व्हाट इज द हैट? इट इज अ 50-year-old ज्योमेट्रिक मिस्ट्री। क्या है इसमें कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया न्यू शेप विद 13 साइड्स एंड दे कॉल्ड इट द हैट। सो इट इज फर्स्ट आइंस्टाइन टाइल, दैट इज नो रिलेशन टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये छोड़ दीजिए, टू हैव बीन फाउंड अ शेप दैट कैन कवर अ प्लेन विदाउट ओवरलैपिंग, लीविंग गैप्स और रिपीटिंग पैटर्न्स। तो इसमें इतनी आपको टेक्निकल डिटेल नहीं चाहिए, बस आप ये याद कर देख लो कि हैट कितनी साइडेड फिगर होती है, ठीक है। आइंस्टाइन टाइल भी कहते हैं इसको। इसरो हैज लॉन्च्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, ये RLV लेक्स, ठीक है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया। नेक्स्ट वी हैव स्नैप 10A। ये स्नैप 10A वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर इन स्पेस, ठीक है। 1965 में लॉन्च हुआ था ये, वर्ल्ड का फर्स्ट मतलब ऑपरेशनल स्पेस रिएक्टर, ठीक है, स्पेस में न्यूक्लियर रिएक्टर जो डेवलप हुआ। USA first and only space nuclear reactor, snap this was the result of government sponsored, this is just कुछ नहीं है चाहिए, बस US का है ये, इतना याद रखो बस आप। नाउ वी हैव इराविकुलम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है इराविकुलम? हाँ जी, इट गेट्स अ न्यू फर्नेरियम। फर्नेरियम क्या है? जो फर्न्स है ना। तो द नेचुरल हैबिटेट ऑफ नीलगिरी टार, नीलगिरी टार आपको अब पूछा जाए, नीलगिरी टार इज
एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है नेचुरली जहां मिलता है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स वाला जो नीलगिरी हिल्स है ना, नीलगिरी माउंटेन्स का ट्राई जंक्शन एरिया है। प्लस यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स के जो ट्राई जंक्शन वाला एरिया है वहाँ पे आपको लाइन टेल्ड मकाऊ भी मिलेगा, लाइन टेल्ड मकाऊ, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, तो एराविकुलर नेशनल पार्क में एक नया फर्नेरियम सेट होने वाला है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ बोटानिकल गार्डन और ग्रीन हाउस दैट स्पेशलाइज इन कल्टीवेशन ऑफ फर्न्स। ठीक है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी अंडर द अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, अंडर अनक्लॉज, ocean areas beyond natural jurisdiction and their mineral resources are the common heritage। obviously हमने पढ़ा था, आपको मैंने पहले भी समझाया था। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है टिल 12 nautical miles, then another 12 nautical miles, this is territorial water, this is contiguous zone, and from the from the coastline till 200 nautical miles, this is एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो इसके बियॉन्ड का एरिया है जो, दिस इज हाई सीज। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अंडर अनक्लॉज द एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, मतलब ईईजी के बाहर वाला एरिया, दैट इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड, दैट इज ग्लोबल कॉमन्स, दैट इज अ ग्लोबल कॉमन, एवरीवन हैज एक्सेस। तो इंटरनेशनल जो सी बेड अथॉरिटी है वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि किसको कितना एक्सेस ऑफ वो जो रिसोर्सेज देना है। तो इंडिया को हमने देखा था 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन दिया हुआ है। ठीक है, it will start taking permit applications from companies that want to mine the ocean floor। तो जो ओशन फ्लोर की माइनिंग से रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। क्लियर है यहां तक? यस, एराविकुलम इज इन केरला। वंडरफुल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अभी आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के हमारे 50 साल हो गए। 1973 में ये लॉन्च हुआ था। अंडर विच एक्ट बताएंगे मुझे, हम पढ़ चुके हैं। WLPA 1972। थोड़ा प्रॉम्प्टली जवाब दीजिए यार, ऐसे नहीं चलेगा। WLPA फिर पुराना पढ़ाने का फायदा क्या अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो। आई वॉन्ट प्रॉम्प्ट आंसर्स इन द क्लास। WLPA 1972। ठीक है, तो एक बॉडी बनी थी NTCA। ठीक है, NTCA दैट इज द गवर्निंग बॉडी, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। तो इट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन द अप्रैल इन जिम कॉर्बेट पार्क, आपका पहला था। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चेक करके बताएं मुझे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? देन कूल रूफ पॉलिसी ऑफ तेलंगाना, क्या पॉलिसी है ये? इट हैज अनाउंस्ड कूल रूफ पॉलिसी फॉर बिल्डिंग्स requiring all government non-residential and commercial buildings to implement cool roofs। एनर्जी एफिशिएंट होना है। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट हमने सिस्टम्स बनाने हैं ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो और एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल आपका। 53 which is the latest one, Monica? Artemis 2 mission, the first woman and the first African American planned। ठीक है, तो जो आर्टेमिस 2 आपका मिशन है, आर्टेमिस 2 मिशन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन होगी इसमें, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन विल बी देयर। इट इज अ नासाज लूनर मिशन। इंडिया ने चंद्रयान 3 के बाद जापान के साथ एक लूनर मिशन लॉन्च करना है, उसका नाम पता है किसी को? मैंने पढ़ा चुका हूँ क्लास में। लूपेक्स। यस, वेरी गुड, इट इज लूपेक्स। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। वेरी गुड, एक्सलेंट। आई वांट रिस्पॉन्सेज लाइक दिस ताकि मुझे भी पता चले कि पढ़ाने का फायदा हो रहा है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड आर्ट कलेक्टर किरण नादर। ठीक है, 54 रानीपुर इज द लेटेस्ट। ओके, recently conferred Chevalier de la Légion d'honneur
Legion of the Knight of the Legion of the Honor by French Ambassador to India, Emmanuel Lenin. ये किसको मिला? किरण नादर को, ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट आर्ट की फील्ड में। नाइट ऑफ द लेजन ऑफ द ऑनर, ठीक है, फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया, इमैनुअल, नाम है इसका इमैनुअल लेनिन, इन द आर्ट फील्ड। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स, it is an agreement between a taxpayer and a tax authority that sets out how international transactions between related companies will be priced to avoid any confusion or disagreement about the pricing of those transactions, ठीक है। तो ये पहले से ही एक डिसाइड हो जाता है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एपीएस का? टू कीप अ चेक ऑन बिग मल्टीनेशनल कंपनीज सो दैट दे डू नॉट एंगेज इन टैक्स इवेजन, ठीक है। क्या होता है कई बार की जो फॉरेन एमएनसीज हैं, दे से दैट वी आर पेइंग आवर टैक्स इन द होम कंट्री, ठीक है। तो वो एपीए साइन करके वो इस चीज से वी काइंड ऑफ बचा लेते हैं, हम अपने टैक्स इवेजन को हम चेक कर सकते हैं। एडजस्टिंग देयर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन, वो क्या करते हैं, अपने जो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं अपनी सिस्टर कंसर्न को इन द पेरेंट कंट्री, सो टू अवॉइड काइंड ऑफ टैक्सेशन। सागर सेतु ऐप, जो हमारा नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल है, ठीक है, जो मरीन वर्जन है उसका, उसका जो उसकी ऐप है उसका नाम हमने दिया है ये सागर सेतु। लॉन्च बाय कौन सी मिनिस्ट्री? इट इज बट ऑब्वियस पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इट विल प्रोवाइड रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द वेसल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, गेट, कंटेनर फ्रेट स्टेशन एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सारा इंफॉर्मेशन ये देगा। छत्तीसगढ़ एरोमेटिक राइस नागरी दुबराज, ठीक है, ये नाम याद रखो। इट गेट्स जीआई टैग। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप माँ दुर्गा, जो भी है स्वास्थ्यता समूह, just get that order, just remember this name, ठीक है। ग्रेन फाइंड्स रेफरेंस इन वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि नारायण में इसका रेफरेंस है, ठीक है। फिर आपका एक और है जेरा फूल राइस छत्तीसगढ़ से, इट वाज आल्सो ग्रांटेड जीआई टैग इन 2019। दुबराज इज द सेकंड वैरायटी ऑफ राइस टू गेट द जीआई टैग। तो जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है व्हिच गिव्स द काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू इट, ठीक है। पहला इसमें कौन सा था? जीरा फूल, दूसरा नागरी दुबराज। So there is one doubt. हम्म So BT cotton also comes under GI tag, no? Doubt as in BT cotton is, why would you give GI tag to BT cotton? It is a genetically modified crop. Yes, sir. There is nothing about GI tag to it, na? Okay. Yeah. Any other doubts, anyone? किसी को कोई डाउट? No doubts? No, sir. Okay. So the COPE India exercise, the Air Forces of India and the United States are set to conduct the COPE India exercises at कहाँ पे? कलाई कुंडा एयरबेस इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये भी याद रखो कि कलाई कुंडा जगह पूछ सकता है कहाँ पे, इट इज इन वेस्ट बंगाल, इट्स इन एयरबेस। तो कोप इंडिया एक्सरसाइज किसकी है? यूएस इंडिया एयरफोर्स की, ठीक है। जापान विल आल्सो ज्वाइन एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है। अदर इंडिया यूएस एक्सरसाइजेस हम ऑलरेडी
ठीक है। क्लियर है। तो आर्मी की हमने पहले आपको पढ़ा चुके हैं एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं इंडिया और यूएस की। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार। तो ये एक्सरसाइजेस बिकम मोर इंपॉर्टेंट। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ठीक है। नेवी की कौन सी है? मालाबार तो आपको पता है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया ट्राइलैटरल है वो, ठीक है। उसमें यूएस ऑल्सो ज्वाइन। एयरफोर्स की रेड फ्लैग 16। सो दीज एक्सरसाइजेस शुड बी ऑन योर टिप्स, इट शुड बी ऑन योर टिप्स। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ठीक है। स्टेट ऑफ कर्नाटका मर्ज्ड द टॉप। किसने लॉन्च किया ये? टाटा ट्रस्ट, ठीक है। द रिपोर्ट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट अंडरटेकन इन पार्टनरशिप विद दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड टिस प्रयास। टिस क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है। आज से थोड़ा कम, सोशल कैंपेन लॉन्च बाय FSSAI फॉर हेल्दी फूडिंग हैबिट्स, ठीक है। ईट राइट कैंपेन, आज से थोड़ा कम, ऑल दीज, ठीक है। ईट राइट भी है, दिस इज बाय FSSAI, ओके। FSSAI क्या है? व्हाट इज FSSAI? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट के तहत बनी है ये? बोलिए। एनी आइडिया? फूड सेफ्टी एक्ट 2005। राइट। So it is what type of body? Statutory body, no? Any body that is formed via, act of the parliament is a statutory body. It is not a constitutional body. ठीक है। United Nations water conference was held in New York में हुई थी 2023 की water conference, ठीक है। First such meeting was held after 46 years. तो UN water conference 2023 New York. Just remember the venue. Host country कौन सी है? These were the countries that hosted the conference: US, Tajikistan and Netherlands. ठीक है। आउटकम्स क्या है? वाटर 12 ब्लूप्रिंट, a UNESCO platform that hosts city profiles and case studies, making rights real initiative, non-binding, this you leave it, ठीक है। ये छोड़ दीजिए। Then you have solar photovoltaic capacity. India's cumulative module manufacturing capacity, ठीक है, more than doubled from 18 gigawatt to 38 gigawatt. तो इंडिया ने ये डबल कर दी। Mr. Anirban, you are joining very late. Hello, Mr. Anirban. Yes, sir. Hello, sir. I think you joined so late in the class. Were you not aware of the time? Sir, actually, I was aware, but I was not present at that moment in the house. So, I'm No, sitting in front of laptop now. that So should this, not happen. So join the class in time, no? yes, sir. I understand, And sir. This is and the last. in future, if anyone is missing the class without intimation,
you won't be getting any. I have categorically told the team that you won't be given the lectures or PDFs if you miss the class without intimation. And secondly, your PDFs and lectures will be given to you at a time. Lectures will be provided to you in the weekends. So don't ask, but team is fed up by persistent questioning also. So don't ask for lectures and PDFs every 2 hours, 3 hours. You will get it in the weekends. And only those who have taken permission before the class will get the PDF the next day. Okay? Okay. Chalo. Don't repeat this again. Sure, sir. Next is Himachal Pradesh government is planning to introduce Himachal Pradesh Sukh Ashray, ठीक है, in the state assembly. क्या है ये? फिर give plastic for good campaign. Plastic eradication campaigns are going on across the country. ठीक है. Sadiwara, a village in South Kashmir's Anantnag district, has launched innovative eco-friendly initiative called Give Plastic Take Gold. यहाँ पे क्या था कि अगर आप I think 100 kgs, जहां मुझे याद है 100 kgs of अगर वेस्ट इकट्ठा करते हैं, एक गोल्ड कॉइन मिलेगा आपको. मे बी उसकी क्वांटिटी कम होगी, छोटा ही होगा, लेकिन जस्ट टू इनिशिएट, मतलब थोड़ा सा 20 क्विंटल्स. हाँ, 20 क्विंटल्स आपको एक गोल्ड कॉइन मिलेगा. 20 क्विंटल्स. रेयर अर्थ मेटल्स डिपॉजिट फाउंड इन आंध्र प्रदेश अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पूछा जाए कहाँ पे है, सो द अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इज इन आंध्र प्रदेश. ऑलराइट. मल्टीलैटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP 2022 में हुए एस्टैब्लिश ये. व्हाट इज दिस? कंट्रीज कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व है? US, Canada, Australia, South Korea, EU and Japan. So all these countries, they are part of this multilateral MSP मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. ठीक है. इंडिया नहीं है इसमें. आपको ये भी याद रखना है, कोई भी आप इंटरनेशनल बॉडी इफ यू आर रीडिंग, just make sure that whether India is a part or not. So यहाँ पे India is not a member of this partnership. India is not here. Okay. What is the objective? To build robust critical mineral supply for climate objectives. ठीक है. India, Malaysia agree to trade in rupee. अच्छा, recently India has signed a rupee swap agreement with one of the countries. Can you tell me? It is, I think, few months back. 2-3 महीने पुरानी बात है. Anyone? UAE. Yes, very good. Dirham rupee exchange agreement हुआ था. Currency swap. ठीक है. तो मलेशिया के साथ भी किया है. Third largest trading partner of India in the ASEAN region. ठीक है, after Singapore. So इंडिया का आसियान में number 1 trading partner सिंगापुर है. Then we have Indonesia and third में आ गया आपका मलेशिया. ठीक है. What is anti-dumping? Anti-dumping is India has initiated an anti-dumping probe into the imports of poisonous chemicals, sodium cyanide. ठीक है, from China, EU, Japan, Korea. तो क्या है, वहां से इंडिया में इसको they are kind of disposing it off. So we are putting some import duty on that. ठीक है. DGTR Administrator Director General of Foreign Trade होना चाहिए वैसे. DGTR का फुल फॉर्म चेक करेंगे जरा. Sodium cyanide is a crystalline, odorless solid. It's a solid material used for extraction of gold and silver from their ores. तो इसका यूज कहाँ आता है? गोल्ड एंड सिल्वर. DGTR का एक बार फुल फॉर्म चेक करें आप. गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है. ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन. ठीक है. There's a concern over drug resistant bacteria strain allegedly linked to eye drops. तो आई ड्रॉप्स में ना, इंडिया से जो आई ड्रॉप्स, इंडिया के ना फार्मा प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा इशू आए थे. कुछ आई थिंक ड्रग्स थे, आई थिंक कौन सी साउथ, कुछ अफ्रीकन कंट्री, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई थिंक इट वाज रवांडा और लीबिया. तो वहां पे सम चिल्ड्रन डाइड दे, और मे बी दे हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस. अब ये भी आई ड्रॉप्स में भी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पकड़ा जा रहा है. तो ये थोड़ा सा हमारी फार्मा सेक्टर के लिए थोड़े से इशू क्रिएट हो रहे हैं. Director General of Trade Remedies. Okay, DGTR. Okay, that is what kind of does that. It is extensively antibiotic resistant Pseudomonas
एरुजिनोसा बैक्टीरिया, इतना नाम नहीं याद रखना है, बस ये याद कर लो कि आई ड्रॉप्स में जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिला था, दैट इज एन इशू। इसमें जो इन्फेक्टेंट है दैट इज सूडोमोनास एरुजिनोसा which causes infections in blood, lungs and other parts of body after the surgery. Eye surgery होगी या कुछ होगा. So manufacturing of drugs for export needs, ठीक है, we need licensing for that from the concerned state. ठीक है, state की जो licensing authority होगी, SLA होती है ना, that will give license for exporting, ठीक है, under the Drug and Cosmetics Act. All manufacturers were required to meet the requirements of importing the import requirements of the importing country. तो जो भी requirements है वो fulfill करनी जरूरी है. Sky Canvas project, ठीक है, Tokyo based ALE, this is a company name, set to launch a satellite in 2025. The aim is the world's first live human made meteor shower. So they are doing things quite mystical here. The project is called Sky Canvas and it is designated to collect atmospheric data in mesosphere, which is the third layer. यहाँ पे बस याद करना है एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन सी होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, में आयनोस्फेयर भी आ जाता है. यू शुड नो द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ALE plans to, ALE इनकी कंपनी का नाम है, ALE plans to do this by using pressure driven system of gas tanks, ठीक है, that will shoot pellets at a speed of 8 किलोमीटर. इतना नहीं याद करना है, बस मिट्योर शावर करवाएगा ये स्काई कैनवस प्रोजेक्ट में. मिट्योर शावर, ह्यूमन मेड मिट्योर शावर, ठीक है, कहां पे, मेसोस्फेयर में, विच इज द थर्ड लेयर. अब यू शुड नो कि इंडिया भूटान की ना काफी हेल्प करता है वाटर सेक्टर में. वी हैव सेट अप लॉट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भूटान में, और भूटान की जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो उनके डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद बचती है, तो वी ऑल्सो हैव एन एग्रीमेंट कि हम वो खरीद लेंगे उनसे. तो वी काइंड ऑफ हेल्पिंग भूटान आउट. So India has constructed 3 HEPs. First is चुका, कुरिचू एंड तला, ठीक है, ये मेजर हैं. उसके बाद जो भी बन रहे हैं दैट इज मंगाडेचू, उंटा संगेचू 1 and 2. दीज आर पावर प्रोजेक्ट्स. ये नाम याद होने चाहिए आपके, चुका, कुरिचू, ताला, मंगाडेचू, पूरा संगुचू. ये नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एनीवेज. तो इंडिया विल एक्सपाइट द प्रपोज रेल लिंक भी बना रहा है इंडिया, कोकराझार गैलेफू, कोकराझार गैलेफू रेल लिंक, कोकराझार गैलेफू रेल लिंक. कोकराझार कहाँ पे है? इट इज इन द BTAD कॉरिडोर, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एरिया. वहां पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चिरांग, उदालगुड़ी. अगर आपको मैप से समझाते हैं दैट विल मेक इट मच बेटर फॉर यू. ठीक है, तो ये असम का जो ये वाला एरिया है ना, दिस पार्ट, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है ना, तो ये नॉर्थ बैंक है ना जो ब्रह्मपुत्र का, ये वाला एरिया, ठीक है. यहाँ पे आपका अरुणाचल आ गया ऊपर, ठीक है. तो आई वॉज पोस्टेड हेयर तेजपुर. तो ये जो उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं. चिरांग है यहाँ पे, उदालगुड़ी, बक्सा, कोकराझार. तो कोकराझार यहाँ पे है, तो कोकराझार यहाँ पे, ये भूटान का यहाँ पे गैलेफू, कोकराझार गैलेफू, ठीक है. तो ये यहाँ पे रेल लाइन बनेगी आपकी. तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है. तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. यहाँ पे डोकलाम भी था, जो इंडिया चाइना की अल्टरकेशन हुई थी, जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, इफ यू आर एबल टू सी दिस ट्राई जंक्शन, चुम्बी वैली, चुम्बी वैली. तो यहाँ पे डोकलाम एरिया में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में, ठीक है. तो ये एज एन आईबी
एस्पिरेंट यू मस्ट नो दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये कोकराझार गैलीफू, आपको बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि टू गेट अ विजुअल आइडिया ऑफ द थिंग्स देयर, ठीक है। ओपन सोर्स सीड्स, व्हाट आर ओपन सोर्स सीड्स? It simply asks for a pledge that an individual won't restrict others' use of seeds or their derivatives by patents, ठीक है। जैसे ओपन सोर्स डेटा होता है कि कोई भी डेटा इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे विदाउट एनी लाइसेंसिंग, सिमिलरली ओपन सोर्स सीड्स भी हैं कि जैसे हाइब्रिड सीड थी, पेटेंटेड हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पेटेंट कर लेती हैं, तो क्या होता है जो एक बार सीड यूज कर ली नेक्स्ट ईयर वो चलेगी नहीं, उनको फिर से नहीं खरीदनी पड़ेगी। सो दैट इज काइंड ऑफ अ कार्टलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसको थोड़ा सा लिबरलाइज करने का ये ऑब्जेक्टिव था। ओपन सोर्स सीड्स इनिशिएटिव इन इंडिया, ठीक है, क्या है ये? हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पार्ट ऑफ अपना बीज नेटवर्क, ठीक है, डेवलप्ड अ मॉडल विद द हेल्प ऑफ एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। फर्स्ट टाइम अ सीड, a new heat wave resistant wheat variety HD3385, it is a wheat variety, ठीक है, developed by Indian Agricultural Research Institute IARI, being sold by a private company, ensuring that the variety reaches large number of farmers, ठीक है। The Forest Conservation Amendment Bill 2023 in Lok Sabha to make changes to the 1980 Act, क्या है इसमें? What are the features? Restrictions on the activities of forests, फॉरेस्ट में जो felling of trees या उन activities में you put some restrictions. Then you have de-reservation of forest or use of forest for non-forest use, उसके ऊपर भी restriction कि it cannot be so rampantly done कि आप forest को de-reserve कर दो, you de-reserve the forest and then do some construction activities there. Specifies certain activities like conservation, management, development of forest and wildlife that will be excluded from non-forest purposes. तो ये चीजें लाइक कंजर्वेशन जो पर्पसेस हैं, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये चीजें नॉन फॉरेस्ट यूजेस में नहीं आएंगी, दे विल बी इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट यूज, ठीक है। एड्स मोर एक्टिविटीज लाइक जूज एंड सफारीज अंडर दिस, इको टूरिज्म, ठीक है, सिल्वीकल्चर, देन वी हैव लैंड अंडर द परव्यू, ठीक है। तो ये क्या है? द बिल प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ लैंड, किस टाइप का? लैंड डिक्लेयर्ड एंड नोटिफाइड एज फॉरेस्ट, लैंड declared and notified as forest under ये वाला एक्ट, और लैंड नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी बट नोटिफाइड एज फॉरेस्ट आफ्टर 1980। तो ये दो तरह की कैटेगराइजेशन की है, इसको आप समझ लो, ये ज्यादा डिटेल में आपको याद नहीं करना है। याद आप ये रखो, सिर्फ ये रखो कि जो एक्ट आया, अमेंडमेंट आया, उसने रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं कुछ, ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड की हैं इसमें, ठीक है, और डी रिजर्वेशन पे भी कुछ चैलेंजेस, मतलब उस पर भी कुछ चेक्स लगाए हैं। The bill exempts certain types of land from the provisions of the act, such as, हाँ ये एक थोड़ा सा एक ट्रिकी इसका पार्ट है कि थोड़ा सा एंटी कंजर्वेशन हम इसको कह सकते हैं। इज अ फॉरेस्ट लैंड अलोंग द रेलवे लाइन और पब्लिक रोड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हो आराम से। लैंड सिचुएटेड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस, 100 किलोमीटर। सो ये एक जो गवर्नमेंट ने एक रास्ता खोल दिया एक्सप्लॉइटेशन के लिए। लैंड अप टू 10 हेक्टेयर्स प्रपोज फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी एक उसमें एक लूप होल है। तो असाइनिंग ऑफ लैंड थ्रू अ लीज और अदरवाइज, इसमें क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द असाइनिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड थ्रू अ लीज और अदरवाइज टू एनी ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओन्ड, ठीक है। या तो लीज पे दे देगी सरकार उस ऑर्गेनाइजेशन को, या जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंडर नहीं आती उसको, ठीक है। द बिल प्रोवाइड्स दैट द असाइनिंग मे बी डन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज वी हैव मेंशन्ड अबव। तो ये आप इसका बेसिक थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है। देन यू हैव MHA 2018 में कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे अंदर निर्भया फंड। निर्भया फंड क्या था? जो एक 2000 कब हुआ था, 2000 एक, मुझे ईयर भूल रहा है, when that incident happened in Delhi. After that, we had this
Nirvaya fund that was kind of instituted. So in eight cities, including Bengaluru, which involves identifying hotspots or crime against women. So in cities में you will identify those key hotspot areas which are more vulnerable to women being subject to such violence. तो वहाँ पे we'll use technology, infra, capacity building program. तो basically women safety के ऊपर ये एक थोड़ा सा focus करता है. ठीक है. GI टैग की बात करते हैं. बसोली पेंटिंग. ठीक है. बसोली पेंटिंग इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट GI टैग प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू रीजन. तो बसोली पेंटिंग ये बसोली रीजन में काफी पॉपुलर है. देन लद्दाख की वुड कार्विंग. ठीक है. मेड फ्रॉम लोकल वुड सच एज विलो एंड एप्रिकॉट. इनसे बनती है ये वुड कार्विंग. फिर यूपी में बनारसी पान, लंगड़ा लंगड़ा मैंगो ऑफ वाराणसी, रामनगर भंटा दैट इज ब्रिंजल, एंड चांद दोसी आदम चीनी चावल राइस. ठीक है. ये थोड़ा सा नाम पढ़ लो आप, जितना याद रहता है कर लो, नहीं रहता है कोई बात नहीं. ठीक है. Then we have Amrit Sarovar Mission launched in 2022. 25 वाटर बॉडीज बनानी है हर डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. अमृत का मतलब 75 वाटर बॉडीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. ट्वेंटी टू में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट, है ना. देन इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन. ठीक है. विच इज द हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी ऑफ द UN फॉर अ 4-year term. अब इंडिया विल बी हेडिंग इट. ठीक है. द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन कब बना, याद रखो डेट. न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स है. तो इट इज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ UN इकोसॉक. ठीक है. $25 member states हैं on the basis of geographical distribution. different geographical regions के इसमें countries add होती रहती हैं. ठीक है. US and 10 other nations, India is not a part of it, issued the first ever anti-spyware declaration. ठीक है. आप सिर्फ ये याद रखो इंडिया नहीं है. इतनी आप याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं रख सकते तभी कोई बात नहीं. इन्वेजिव एलियन प्लांट इन गल्फ ऑफ मन्नार. गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? एनीवन? गल्फ ऑफ मन्नार. Gulf of Mannar, guys. Any idea? यार तमिलनाडु के पास पढ़ा चुका हूँ पहले. ये वाला एरिया क्या है यहाँ पे? यहाँ पे श्रीलंका आपका. तो ये जो एरिया यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है ना, यहाँ पे क्यों भूल जाते हो? रामेश्वरम कोस्ट, धनुषकोडी, ये सब सारा एरिया वहीं पे है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए आप. तो यहाँ पे कौन सी स्पीशीज मिली है? प्रोसोपिस चाइलिनेसिस, अ ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट नेटिव टू द एरिड रीजन ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज. तो वहां से एक इन्वेजिव स्पीशीज. जो इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है? जो पेरेंट स्पीशीज उस रीजन की है, क्यूमेनाइज स्पीशीज, उनकी जो ये एग्जिस्टेंस को चैलेंज, इट पोजेस अ चैलेंज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नेटिव स्पीशीज. जो जैसे गल्फ ऑफ मन्नार में जो नेटिव स्पीशीज होंगी उनके एग्जिस्टेंस को ये, बिकॉज इट विल टेक अवे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, most of the their ecosystem services. So that is the thing. Ogasawara Trench. ठीक है. A type of snail fish was filmed at the depth of इतने in Aizu Ogasawara Trench, south of Japan, using a robotic lander. इसमें याद क्या रखना है? ओगसवारा ट्रेंच कहाँ पे है?
इट इज इन द साउथ ऑफ जापान। बस इतना याद रख लो। डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए 10 फोल्ड इन लास्ट 6 years। ठीक है। टॉप 3 रिसिपिएंट्स आर म्यांमार, श्रीलंका, आर्मीनिया। तो इंडिया ने अपने आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसके तहत अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किए हैं। सबसे ज्यादा इंडिया करता है म्यांमार में, दूसरा आपका श्रीलंका, and then you have third is Armenia. These are the 3 biggest recipients of our defense manufactured products. National Steering Committee under Dr. K. Kasturirangan was set up by the MOE, Ministry of Education, to undertake and guide development of national curriculum framework. So, ये National Steering Committee headed by Kasturirangan. We'll close the lecture here.